Hello and welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY's app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. And the news out of Adelaide is that India is out and England, dominating that semi-final, make their way to perhaps repeat history of 1992 as they collide with Pakistan in the finals. Congratulations to the English fans, to the Barmy Army, and everybody celebrating around the world. Let's take a look at the match summary before we move on. This is how it went down. England won the toss today. They put India into bat. Rohit Sharma at the toss said that India खुद भी बैटिंग ही करता अगर टॉस जीतता. सो गोया इनके लिए ये कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था. वो वही कर रहे थे जो उनको करना था और उन्होंने 168 for 6 किया, जहां पर once again it was Hardik and Virat show completely. Both of them getting half centuries, showing their class, showing their worth and making an impact for the Indian batting. Now India put up a decent total, 168 for the loss of 6 wickets in their 20 overs. Jordan there picking up 3 wickets. Rashid and Wokes both contributing. In reply, it was just 2 people. Yes, just the 2 openers. It was Alex Hales, Butler, that just completely destroyed the Indian bowling. And in 16 overs, this game was done and dusted, making India look very meek. And as Nasser Hussain said in his closing remarks during the game, that with all the T20 cricket that India plays, England took them down and took them down with a lot of dominance. With me in the pavilion, I've got 4 legends, 4 masters of the game of cricket. I've got the young and dynamic Shoaib Malik. Assalamu alaikum. Mr. Reliable, Dependable, Misbah-ul Haq. Assalamu alaikum. The batsman terrorizing, toe-crushing Waqar, Younis. Assalamu alaikum. And the greatest of all times, the Sultan, the legend, Wasim Akram. Assalamu alaikum ji. Wasim, quite a sad demise of the Indian campaign in this T20 World Cup after all the, expectations that were there, just being bamboozled by the English openers. I mean, England just outplayed them in every aspect of the game today. Yeah. I think when they lost the toss, India, तो रोहित शर्मा ने कहा कि हमने बैटिंग ही करनी थी, लाइक यू सेड अभी अपने इंट्रोडक्शन में. और आई थिंक जहाँ से इनसे गलती हुई है, इनका स्टार्ट बहुत स्लो हुआ है. ये रिकवर कर नहीं पाए. 10 ओवरों में 63 था इनका और उसके बाद इन्होंने आई थिंक जो विकटें हाथ में भी थी, थोड़ा तेज़. आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू सी बिगर पिक्चर के 168 है, सेमीफाइनल है, टोटल ऑन द पिच, but those guys was something else. Alex Hales and Butler. Yeah. Probably 180 would have been 190 probably would have been a good total on this pitch. But I think एक तो उन्होंने एक्सेलरेशन तेज़ की है, थोड़ा लेट किया है. वो तो पांड्या ने आके 63 किया 33 गेंदों पे, तो कुछ इनका रिस्पेक्टेबल टोटल हुआ है. I mean, their captain looked out of touch, 27 of 28, and then of course Virat Kohli got his 50, played okay, but on 40 deliveries. I think that was a big difference between the two sides. Huge difference. Waqar, you had predicted earlier today it is going to be an Englishman. You were the only one on this panel जिन्होंने कहा था कि आज इंग्लैंड जो है वो जीतेगा. Now, on the hindsight, what were you thinking? What was your analysis that you made that conclusion in your initial prediction today? Look, to be honest, it was a guesswork. Okay. But England team, सबको मालूम है, they're a very good. वेरी वेरी गुड टीम. अगर इस मौके पे नॉकआउट टाइम पे अगर कोई टीम रियली चैलेंज कर सकती थी इंडिया को, वो इंग्लैंड ही थी. बट इस तरह डोमिनेट करेगी, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट एंड आई थिंक दे आउटप्लेड देम. इंडिया वाज टोटली इन द शेल. दे डिड नॉट नो हाउ टू सॉर्ट ऑफ इवन स्टार्ट, इवन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. शुरू में ही जब उन्होंने बैटिंग शुरू की, दे वर टोटली लॉस्ट. दे वर नॉट देमसेल्व्स. जो हमेशा से वो जो खेलते हैं ना अग्रेसिव क्रिकेट, शुरू से ही पहले 6 ओवरों में कोई खास रन्स नहीं थे, ओनली 38 रन्स बोर्ड पे थे और उस वक्त भी डरे खेलते रहे थे. और जब तक उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे वसीम भाई ने कहा ना 62-63 रन्स किए उन्होंने 10 ओवर. जब उन्होंने सोचा कि वी आर बिहाइंड द गेम, इट वाज वे टू लेट. आई मीन द पिच गॉट लिटिल बेटर इन द इवनिंग. वो जो इशू था मीडिया को, जो एतराज़ था इंग्लैंड मीडिया को कि यूज पिच है, वो पिच गॉट रियली बेटर आफ्टर दैट. बट ये जिस तरीके से हेल्स और बटलर दोनों खेलते हैं या खेले हैं,
वो जब वो चलते हैं तो फिर इसी तरह होता है। देखिए, बड़ा अच्छा स्टैट है जो आपने पिच बेटर की बात की, स्पेशली नॉकआउट गेम्स में। लास्ट 23 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, ODI plus T20, one batting first 7 times, one chasing 16 times. On this pitch? No, generally. Overall. Okay, overall. All right. इससे क्या? Please आप बताएं। I guess जो मुझे आज लगा ना वो ये लगा कि modern day cricket showed today कि नहीं, अगर आपको बड़ा इवेंट जीतना है तो आपको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और आई गेस वो एलेक्स हेल्स और बटलर ने ये दिखाया, और यही वकार भाई का जो है ना वो कब से इस चीज़ पे इन्फोसाइज कर रहे हैं। That I completely agree with you there, but Shoaib, look, India gets a lot of modern cricket. They play one of the biggest franchise leagues, IPL, जिसमें मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा modern cricket innovation और technology और नई techniques और नई चीज़ें जो हैं, and of course the money वहाँ पर होता है। And then I mean you can't really say कि जी वो इंडिया को modern day cricket खेलनी नहीं आती। No, I never said that. I said कि आज का difference जो था वो ये था, अगर हम stats ही देख लें आज के, तो जो KL राहुल है ठीक है वो जल्दी आउट हो गए, he faced 5 balls, scored 5 runs. रोहित शर्मा played 28 balls, scored 27 runs. But difference जो था वो अगर हम न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाले मैच में भी देखें तो फर्स्ट पावर प्ले जो था उनके भी, न्यूजीलैंड के भी ऑलमोस्ट इतने ही रन्स थे इन द फर्स्ट 6 ओवर, इनके भी वही थे। तो जो डिफरेंस आया वो जॉश बटलर और एलेक्स हेल, उनके 60 और 6, सो यू आर ऑलरेडी बिहाइंड। Agreed. Misbah, this takes us back to what the late Dean Jones had shared with you and Wasim in the Islamabad United camp. If you win the power plays, you pretty much have the game in the bag, right? तो आज तो वाज़े तौर पे इंग्लैंड ने pretty much, but 70 to 80%, 70 to 80% is a huge chance. Wasim, तो उसमें आज दोनों पावर प्लेज जो हैं वो इंग्लैंड ने जीते हैं, वो बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। आई थिंक एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्पेशली इंग्लैंड जो पहली बात की है शोएब ने कि दे कम विद अ वेरी गुड अप्रोच इन दिस गेम। सेमीफाइनल अंडर प्रेशर, OG रन्स ऑन द बोर्ड, वो क्लियर थे कि हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है, 11 तक हमारे पास बैट्समैन है। ओके, इंडिया की स्ट्रेंथ भी उनकी बैटिंग है, बॉलिंग उस तरह नहीं है। टॉस जीत के उन्होंने बड़ा क्लियर लग रहा था कप्तान जो बटलर, वो उसने बिल्कुल कोई परेशानी, टॉस जीतते उसने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे। जबकि रोहित शर्मा वहीं पे लगाया कि वो थोड़ा डाउट में है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है। आई थिंक उसके बाद ऑब्वियसली मुझे लगता है कि उस तरीके से टारगेट सेट नहीं कर पाए इंडिया की टीम। 180 प्लस टारगेट है और उन्होंने अलाउ किया इंग्लैंड को टू जस्ट गेट बैक इन द गेम, और वो प्रेशर नहीं था, थोड़ा सा उन्होंने टाइम भी लिया। फिर दोनों उनके जो ओपनर हैं वो अच्छी फॉर्म में हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको विकेट भी नहीं मिली इंडिया को ऊपर, और वो दोनों ही खेल गए और डोमिनेट कर गए। तो मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट एक तो अप्रोच है, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने पावर प्ले, डिफरेंस इन द बैटिंग, पावर प्ले था आपका, डिफरेंट कंडीशंस थी। अगर ये थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो तो ये वाली अप्रोच आपकी चल सकती है, जैसे इंडिया ने अगेंस्ट पाकिस्तान किया, या सम ऑफ द अदर गेम्स जहाँ पे थोड़ी 160 150 वाली गेम है तो ठीक है, बट यहाँ पे जो एवरेज स्कोर था 180 प्लस है, तो वो रन्स कम थे, वो नहीं कर सके। और जी गेम खेला ना बेसिकली आपने। देखिए, सबको यही था कि IPL से इंडिया को बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज IPL स्टार्टेड इन 2008। उससे इंडिया 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता है। जब से IPL शुरू हुई है आज तक, अभी तक, आज भी अनफॉर्चुनेटली वो हार गए हैं, इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। That's a very interesting stat because they won 2011, that's 50 over. That's 50 over, नहीं हम 20 की बात करें ना। तो जब से IPL शुरू हुई है उसके बाद T20 में इंडिया जो है वर्ल्ड कप नहीं जीता, और उससे पहले जो था वो 2007 में साउथ अफ्रीका में। तो इससे फिर एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, अभी जो मैं इंटरव्यू सुन रहा था वन ऑफ द इंडियन प्लेयर्स, कि जो इनके प्लेयर्स जो ओवरसीज जाके लीग्स नहीं खेलते, एक एक्स्ट्रा लीग भी खेलने की इजाज़त मिल जाए, क्या शे भी फ़र्क पड़ेगा इनकी उसमें अप्रोच में? देखिए वसीम भाई, ज़रूर उससे फ़र्क जो है वो पड़ता है, बट उनकी IPL इट्स बिग इनफ टू गेन दैट एक्सपोजर फॉर अ यंगस्टर, और जो भी प्लेयर्स खेलते हैं वो, बट ये है कि डिफरेंट कंडीशंस पे खेलना उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वैसे जब आप एज अ ओवरसीज़ प्लेयर खेलते हैं कहीं जाके, सो दे पुट एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स।
So that's what matters, where you become a good player. कि आपको ये होता है कि यार अब मैं एज अ ओवरसीज़ खेल रहा हूँ तो मेरी परफॉर्मेंसेज जो है वो ज़ाहिरी बात है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, मेरी मैच विनिंग्स जो है वो इनिंग्स होनी चाहिए, स्पेल्स होने चाहिए. तो आई गेस उन चीज़ों पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है. और दूसरा, यू शेयर ड्रेसिंग रूम विद लाइक क्लास प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स. सो आप उनके वर्क एथिक्स भी देखते हैं कि यार वो how they are so consistent. तो I guess there are so many elements जिससे इन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है. Waqar, for BCCI, a lot to ponder upon after this because look, पिछले साल जब T20 वर्ल्ड कप था UAE में, वहाँ पर भी सेमीज के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी इंडिया. अभी एशिया कप में भी ये आउट हो गए थे. They didn't make it to the last stages again. And here again in the very crucial game of the semi-final, that is a very, very big defeat. 170 without loss. I mean, this is just almost embarrassing. So what BCCI really needs to pause and think, where are they going wrong with their T20 policy? Because clearly it then shows since 2008, when the IPL started, till now, that this IPL thing is not working for them. It's a great league. It's a big league. No question about it. It's very good for for people who want to monetize on it. जो पैसे बनाना चाहते हैं, जो players जिनको पैसे चाहते हैं. But it's not bringing the right results for the Indian cricket team. Look, जब stakes high होते हैं ना तो pressure भी high होता है. फिर and I feel के IPL is a mega event. I mean, there's lot of things at stake. बड़े big businessmen are involved. It's a big company. It's a huge company and mega event होता है. तो I mean, जब आप इस तरह बड़ा mega event खेलते हैं तो फिर आप जब आप इस तरह के internationally जाते हैं तो आपके ऊपर एक added pressure होता है. And ये जो आप जितने भी आपने अभी matches गिनवाए हैं, they're knockout matches. तो जब आप knockout stages पर पहुंचते हैं तो that burden really you feel that on your shoulders. And I feel कि वो आज भी नज़र आया. पिछली दफ़ा लास्ट टाइम जब वो पाकिस्तान से खेले इन UAE, फिर एशिया कप में, ये सारी चीज़ें क्लियरली दिखी हैं उनके शोल्डर्स पर कि दे जस्ट टेक प्रेशर एंड दैट्स व्हाई दे कुडंट रियली जस्ट मूव ऑन विद द गेम. जो दलेरी से वहाँ पे खेलते थे वो दलेरी यहाँ पे नहीं आती. I mean, इन्होंने जितने भी इनके अगर आप नाम उठा के देख लें, राहुल हो गया, रोहित हो गया, विराट हो गया, सूरज, इनके सेंचुरियाँ हैं. और आज ऐसे लग रहा था कि जैसे देवर इन अ शेल. So there were no really. I mean, look at back to the point Wasim bhai, this is the biggest point which I want to to make के जी आप उन्होंने इंग्लैंड के स्पिनर्स को सिर्फ 41 रन किए हैं 7 ओवरों में. और एक पार्ट टाइम स्पिनर था एक. और and nobody really could take him. I have not seen any cross batted shot जबकि बाउंड्रीज छोटी हैं. So they were just worried. तो जब आप worried होते हैं, although उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए अपना पांड्या का कि उसने आके नीचे से 60-70 बड़ी तेज़ी से की है. आखिरी 5 ओवरों में उन्होंने 70 रन किए, वरना ये तो 120-25 रन नहीं कर रहे थे. क्योंकि मैं तेरे को एक बात बताता हूँ वकार भाई, ये इशू इंडिया का रिसेंटली अगर आप देखें 2019 के वर्ल्ड कप में भी है. अगेंस्ट न्यूजीलैंड और स्लो पिच दे लॉस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड. और वहाँ पे भी स्ट्रगल किया इंडिया के बैट्समैनों ने अगेंस्ट स्पिन एंड देन दे स्पिन बॉलिंग आल्सो. इसके ऊपर भाई मजीद बात करते हैं, मगर इस वक्त लेते हैं एक वक्फा ऑन द पेविलियन. यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप. विल सी यू ऑन द अदर साइड. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप. We're talking about the ICC Men's T20 World Cup's second semi-final, which England has won and are now marching on to the finals to clash with Pakistan. ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे एक तो IPL की कि IPL और BCCI को rethink करना पड़ेगा because it's clearly not working for them. The records are showing, the stat and the data is saying that it's not working out for the Indian team. Maybe something needs to be tweaked over there. But before the break, we were talking about spin bowling. But Wasim, you wanted to... नहीं, मेरा एक IPL की बात कर रहे हैं. So अभी एशिया कप में सारे मेरे दोस्त इंडियन कोलीग्स जिसका काम भी किया है, all of them we met, had a great time. तो I was talking to them about Indian fast bowlers जो आते हैं. वहाँ पे हमने देखा है, जो मैंने नोट किया, आई होप कि मैं ठीक कह रहा हूँ, कि इनका एक फास्ट बॉलर आता है. फॉर इंस्टेंस जैसे आविश खान, वो आया वो 145 था. 145 उमरान तो है ही है. कभी आविश खान आया था, बिल्कुल इंजर्ड हो गया था. करेक्ट, यू आर वेरी राइट. सॉरी. सो
ये आए 145, 140 प्लस पेस कंसिस्टेंट इन द वन सीजन ऑफ IPL दे प्ले, इनकी पेस चली जाती है 130 पे, 135 पे। एक तो इंडिया ने आई सपोज BCCI ने ये रीज़न चेक करनी है ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ही गॉट पेड अबाउट 12 to 13 करोड़ इंडियंस। आई एम ऑल फॉर मनी, बट आई थिंक यंग प्लेयर के लिए कैप होनी चाहिए, इवन IPL में भी, कि नया लड़का आ रहा है, इससे इतने ज़्यादा पैसे आप नहीं दे सकते इसको, ताकि उसको पता लगे, हंगर का उसको पता लगे कि भूख होती क्या है। अगर मुझे पाकिस्तानी 24 करोड़ मिल रहा है एक महीने का, वो नेचुरली आई थिंक द कल्चर वी कम फ्रॉम, इंस्टेड ऑफ वर्किंग मोर हार्डर, फ्यू ऑफ अस प्रॉब्ली विल, हम फिर अपने को क्या कहते हैं, ढीला छोड़ देते हैं। So I think that actually this is my idea. Yeah, but very good point. Waqar, your take on that. Why would somebody who bowls at 140, 145 go into the league and then slow down? After 1 year. After 1 year. Look, I don't know. हम तो emphasis इसी पे डालते हैं, जब मैं bowling coach भी था, जब मैं coach भी था, कि if you're quick, that is your first priority, to bowl quickly. Yeah. Because I believe in that. मैंने सारी ज़िंदगी की है, वसीम भाई ने की है। क्योंकि अगर आप पेस है आपकी, तो देन यू लर्न द अदर बिट्स। अगर आप पेस पीछे कर स्लो करके आप लर्न करोगे और वो स्विंग होगा बॉल, आप कहेंगे यार आई एम हैप्पी विद दैट। राइट। सो आई थिंक कहीं ना कहीं T20 क्रिकेट ने भी इसका नुकसान कराया, और कहीं ऑफ कोर्स कोचेस भी आपको फिर कहते हैं कि अच्छा ये अंदर लाओ, बाहर लाओ, just maybe bowl a little slower, and then you get into a habit. Yeah. That's all I can think of. I don't know what goes around in their camps, but pace matters. Pace big time matters. Yes, it might just go for a few runs at times. I have a very incident happened to me early days of my career. The great our captain, skipper Imran Khan. वो एक मैच ड्रॉ हो रहा था, टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहा था। ड्रॉ हो होता है, आखिरी 2 घंटे रहते हैं, यू डोंट गिव योर मेन बॉलर्स अ बॉलर, बॉलिंग नहीं कराते कि यार ड्रॉ हो रहा है। बट मैंने देखा इमरान भाई एक एंड से 4 ओवर के स्पेल खेल, कह रहे मैं 4 ओवर का स्पेल करूंगा और पूरा जोर लगाऊंगा, तुमने उस एंड से 4 ओवर करने, पूरा जोर लगा के। मैं कहा टेस्ट मैच तो ड्रॉ हो रहा है। I was a kid, 21 year old. He said इससे तुम्हारे bowling muscle strong होंगे। जब थके होते हो, जब ज़्यादा एक जोर लगाओगे, तुम्हारी pace increase होगी। Okay. And that's what actually happened. Wow. कि जब आप थके होते हो, आप एक स्पेल आके करते हो, 2, 4, 5 दफ़ा करते हो अपने मतलब एक सीरीज़ में, तो आपकी पेस इंक्रीज होने के, बिकॉज उससे आपके बॉलिंग मसल स्ट्रांग होते हैं। बॉलिंग मसल्स क्या है, वो एक मसल तो नहीं है ना पूरी बॉडी में, बॉडी के साइड, बाल से लेके पाँव की छोटी उंगली तक आपका हर मसल उसमें यूज़ होता है। और फास्ट बॉलिंग, जब बॉलिंग करोगे लंबी तो आपकी पेस बढ़ेगी, बॉलिंग कम करोगे। आजकल आते हैं लड़के T20 फॉर्मेट में, जी मैंने 18 गेंदें करनी है। I said, hang on a minute, go back to the dressing room and just sit there, don't come out, there's no point coming for 3 overs. Yeah. So that sort of mindset, I think not just in IPL, in general young bowlers में आ गया हुआ है। That's very true. मिसबा, आप बात कर रहे थे about the spin bowling handling of the Indian batting. Continue on that. I think 2019 में भी इनके साथ इंडिया के साथ somehow ये रहा कि वो स्लो पिचेस पे उस तरीके से स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे, और उनकी परफॉर्मेंसेस ना सिर्फ ये कि बैटिंग में वो उस तरीके से अटैक नहीं कर पा रहे, बल्कि बॉलिंग में भी अगर आप देखें इंडिया की माइंडसेट है, मुझे लगता है फिंगर स्पिनर कंटेन करने जा रहे हैं आप, विकेट टेकिंग यानी एग्रेसिव माइंडसेट के साथ नहीं जा रहे। अपनी बॉलिंग में जो ऑप्शंस ले रहे हैं वही आपको बता रही हैं कि एक तरफ आपने ऑफ स्पिनर रखा हुआ, दूसरी तरफ अक्षर पटेल जो कि नॉर्मली रन्स रोकने के लिए आप लेके आते हैं, रिस्ट स्पिनर है या चाइनामैन, सॉरी लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर अब हम कहते हैं उसको। मुझे लगता है जडेजा ओवरऑल एज एन ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, बट इन कंडीशंस में मैं समझता हूँ कि वो भी अटैकिंग ऑप्शन नहीं है आपकी, रन्स रोकने वाली आपकी ऑप्शन है। चहल या आपके पास अगर लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, गुगली बॉलर, बिल्कुल, तो वो एक देखें इंग्लैंड ने कैसे चेंज किया। आदिल रशीद को उन्होंने एक एक्सटेंडेड रन दिया और हमेशा उसको एज एन अटैकिंग ऑप्शन, आज भी वो उसको ले आए थे पावर प्ले के अंदर। जब आप डरते रहोगे कि इसको रन्स हो जाएंगे, आज उसने मेन विकेट आपके लिए, अब सूर्य कुमार यादव को मतलब आउट करना, दैट वाज अ गेम चेंजर। और जब आप 20 रन दिए, बिल्कुल 4 ओवरों में 20 रन दिए, और इवन लिविंगस्टन उसको भी वो लेग स्पिन करते हैं, वो भी अटैकिंग ऑप्शन बन जाती है। कब अलाउ हो सकता है ये आदिल रशीद को, वो शुरू में ही लेके आ गए थे क्योंकि उनको विकेट चाहिए था, उनको पता था कि एक हम लोगों ने KL राहुल को आउट कर लिया, एक और करेंगे तो इनकी बैकबोन टूटेगी, तो इस वजह से वो उनको लेके आई। और दूसरा आदिल रशीद को जो ये मल्टीपल वीज़ा मिला हुआ है, वो इसलिए भी मिला हुआ है कि उनकी
जो गेम प्लान है वो 180 190 वाला मैच खेलते हैं, इसलिए वो फ्रीडम देते हैं बॉलर्स को कि आप विकेट लो, तो फ्रीडम के लिए आप रन्स की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इंडियन जो अप्रोच थी इंडियन टीम की वो ये थी, हमारे साथ 150 वाला 160 वाला मैच खेलो, उसमें आपको सारे बॉलर्स जो है ना वो ऐसे चाहिए कि हमेशा आप अटैक कर रहे हैं, आपको विकेट चाहिए, आप फिंगर स्पिनर से रोक सकते हैं रन्स, लेकिन रिस्ट स्पिनर से नहीं कर सकते। वेरी वेरी गुड, कंटिन्यू। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जिसमें अश्विन और जडेजा को काफ़ी सारे रन्स पड़े थे, तब से लेके अब तक दे हैव ट्राइड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन स्पिनिंग डिपार्टमेंट, बट वो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया। थोड़े टाइम के लिए बना था चहल और कुलदीप यादव का, वो उनको करते थे सपोर्ट, क्योंकि वो मिडिल ओवर्स में आते थे, विकटें लेके देते थे, ऊपर से बुमराह लेते थे विकटें, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था, तो आप दूसरी टीम को अपने अंदर ढाल लेते थे। ये 150 वाला 160 वाला मैच, वो भी तेज लेग ब्रेक करता है, पर मोस्टली गुगली होती है उसकी। बिश्नोई भी अच्छी ऑप्शन हो सकता था, वो इसलिए हो सकता है कि नए बंदे को, मिस्ट्री स्पिनर को आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि दूसरे नहीं खेले होते इस प्लेटफॉर्म पे। जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं प्रेशर होता है, तो आई गेस जिनको आपने ऑलरेडी पहले खेला हुआ होता है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए जॉश बटलर की IPL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है, वो टॉप स्कोरर बनते आ रहे हैं आखिरी कपल ऑफ ईयर्स से, तो आई गेस ये क्रेडिट उस पर भी जाता है कि वो वहाँ जाके खेले पूरा सीजन, और वो भी अवेयर थे ऑफ देयर इंडियन बॉलिंग अटैक। क्लैरिटी भी चाहिए आपको, आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। इट्स सेम लाइक अ बैटर कि आप उसको कहें निकल के हिट मारनी है, स्टंप नहीं होना। स्पिनर भी इसी तरह ही है कि अगर आपने एग्रेसिव लेग स्पिनर खिलाना है और उसको आप फिर कहें कि अब तुमने स्कोर रोकना है, बेसिकली उसका काम ही है, वो एग्रेसिव बॉलिंग करेगा, अपने गुगली भी करेगा, लेग ब्रेक भी, और कोशिश करेगा विकेट्स आए, तो फिर ही आप सक्सेसफुल। मेरा एक सवाल है, जब आज इंग्लिश ओपनर्स बैट कर रहे थे मिसबा, डू यू थिंक कि पावर प्ले के अंदर रोहित शर्मा ने जो चेंजेस की, जो बॉलिंग डिप्लॉय की दोनों एंड से, वो वाज देयर एनी अदर थिंग ही कुड हैव ट्राइड, या were you satisfied with that? Was it that was all his options? मुझे लगता है कि जो मैचअप से, हालांकि भुवनेश्वर का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस्ट जॉश बटलर, बट मैं स्टिल फील करता हूँ उनके अगेंस्ट अर्ली ऑन इस वर्ल्ड कप में भी लेफ्ट हैंडर जैसे जॉश लिटल ने उनको आउट किया अर्ली ऑन, अगर पहला और शायद अर्शदीप से कराते तो मुझे लगता है शायद ज़्यादा चांसेस थे, और उनको फिर एक ओवर कराया सर, उसका अच्छा गेंद स्विंग हो रहा था। और नॉर्मली जो ये पॉइंट आप पीछे कर लेते हैं या कवर पीछे कर लेते हैं, इट्स ऑलवेज बेसिकली आप गंदे बॉल की प्रोटेक्शन रखते हैं। बिल्कुल ऐसे नॉर्मली आपने जो फील्ड सेट करनी होती है वो आप अच्छे बॉल के लिए फील्ड सेट करते हैं, अच्छे बॉल के लिए आप कैचेस लें, और अगर बुरा बॉल है उसको आप सेफ नहीं कर सकते। वही वकार में क्विकली ये 16 ओवर में गेम खत्म हो गया, एंड जो इनके मेन बॉलर थे भुवी एंड अर्शदीप, इनके 2-2 ओवर अभी भी बच गए। वो तो बक्स काफ़ी सारों के बच गए, ओवर तो इनके पास बहुत पड़े हुए थे। आई थिंक अनदर बिग मिस्टेक जो रोहित शर्मा ने जो मुझे समझ आई है कि वो ये की कि आपने ना व्हेन ही स्टार्टेड द गेम ही वाज थिंकिंग ऑफ द एंड ऑफ द गेम, यू नो, ही वाज थिंकिंग कि अच्छा मैं जब आप फील्ड में आए ना, जब आप फील्ड करने आए हो, तो आप अगर आप ये सोचना शुरू हो जाओगे ना कि मैं इसके ओवर में एंड में बचा लूँ और उसके ना बचा लूँ, आप विकेट नहीं लोगे। 160 170 का जो मैचेस होते हैं ना, वो आप नहीं जीत सकते, आपको विकेट्स लेनी ही पड़ती हैं, और रेगुलर बेसिस पे विकेट्स लेनी पड़ती हैं, तभी जाके आप मैच जीतते हो। बिगेस्ट मिस्टेक ही मेड कि जो अर्शदीप को जब शुरू में 2 चौके लगे उसने उसको हटा दिया, उसने कहा अच्छा ओके अब मैं इसको बचा लेता हूँ, क्योंकि ही बॉल्स रियली वेल एट द एंड, जो यॉर्कर्स करता है तो हमारे पास शायद एवरेज इतनी होएगी, ये होगा। No, you don't do that. You just make sure you keep attacking. That's what Pakistan does. They just keep attacking because they got more options. तो अगर आप वहाँ पे वो अगर मेरा ख्याल है अगर उसको 1-2 ओवर और कराता और 1-2 विकेट्स की खुलती, आई नो इंग्लैंड की बड़ी लंबी बैटिंग है, लेकिन जब तक आप तक दरवाज़ा ना खोलें तब तक तो चल ही नहीं सकता। So this is what happened with them. With that, it's time for another break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports, 10 Sports and the Airways app. We'll be right back. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द Airways app and we're talking about the second semi-final, England versus India. England march on to the finals. हम बात कर रहे थे इंडिया की स्पिन बॉलिंग की एंड मुख्तलिफ पहलुओं की. Let's get down to some of the positives. It was Virat Kohli again, Shoaib.
who looked really good. Though the strike rate wasn't that great, but he came in under pressure when India looked in trouble. बिल्कुल, I guess we should give credit to his innings, the way he batted. और अगर हम ये थोड़ा सा इस पे जाएंगे, he played 40 balls, scored 50 runs with a strike rate of 125. ये power play का shot था और he has taken his chances, but don't forget that's his natural game. Yeah. सिर्फ एक चीज़ हुई है कि एंड में वो शॉट उन्होंने बहुत अच्छा प्लेस किया था, बट बहुत अच्छा आदिल रशीद ने कैच किया, तो वो इसी तरह खेलते हैं जैसे वो शूट करती है, जिस फॉर्मेशन से इंडियन टीम खेलती है. तो आई गेस जो एंड में उनके जो स्ट्राइक रेट एकदम 200 पे जाता है, वो नहीं जा पाया एंड वाले 2-3 ओवर्स में. जी बिल्कुल, बट ओवरऑल ही बैटेड ब्रिलियंटली. या एंड हार्दिक पांड्या, मिसबा, जस्ट फैंटास्टिक. आई मीन ह्यूज स्ट्राइक रेट, 190 का स्ट्राइक रेट आज की इनिंग्स में भी. बट लुक, ही इज कंसिस्टेंट. जब वो मुश्किल में होती है उनकी टीम, जब भी होती है, एक तो वो आके बीच में उसको संभालने की कोशिश करते हैं. हमारे खिलाफ भी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली थी इसी वर्ल्ड कप में, और आज फिर आई मीन इट वाज हिम जिसकी वजह से आज 168 पे पहुंची है इंडिया की टीम. आई थिंक सो, वरना एक टाइम पे तो ऐसे लग रहा था कि बड़ा मुश्किल है 150 करना. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप देखें उनको इक्वली गुड है हर साइड पे. जिधर का बॉल है वहाँ मार रहे हैं, शॉर्ट बॉल पे उतने अच्छे हैं, अगले बॉल पे ये देखें किस किस्म का शॉट फ्लिक किया है. ऑफ साइड के बाहर अगर आपने बॉल किया तो उसको प्लेस कर दिया है. वो हर तरफ 360 जब आप खेलते हैं तो देन बॉलर्स आर ऑलवेज इन ट्रबल. और पावर देखें, अब ये शॉट आई थिंक टूवर्ड्स द लॉन्गर बाउंड्री और अंडर प्रेशर. और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आई थिंक टेम्परामेंट है, सेल्फ बिलीव, जो हम पाकिस्तान वाले मैच में भी बात कर रहे हैं. जब आप पैनिक हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, देखते हैं कि यार हम पीछे जा रहे हैं मैच से, 2 ओवर रह गए हैं, 3 ओवर रह रहे हैं और हमें चाहिए 180, पैनिक होते हैं आप. जो बॉलें आपके जोन में होती है वो मिस आउट करते हैं. तो आई थिंक ओवरऑल इसका टेम्परामेंट very good temperament. And that bat speed. I know, I was about to say bat that. speed is phenomenal. I mean, it's unreal to see the way it is real time. It just looks very impossible. His bat speed is phenomenal. It's like Chinese noodle maker. Yeah, it's so quick. Do it again. There you go. So quick. जैब इवन वो जितनी पावर जनरेट करते हैं उस पे, इवन जो कवर में और छक्का मारा है और फिर जो एक सामने छक्का मारा, वो ऑलमोस्ट पूरा बैट पीछे भी नहीं गया, वहीं से बस सिर्फ वो उसको हेलीकॉप्टर शॉट. एंड ही स्ट्रांग एज वेल, क्योंकि आपको अगर पुराने बॉल पे बाउंड्रीज क्लियर करनी है जहाँ पे पीछे फील्डर्स खड़े हुए हैं, तो उसके लिए आपको एक पावर चाहिए, तभी आप हर एरिया में खेल सकते हैं. वरना आप जो स्ट्रेंथ अगर थोड़ी सी कम हो तो आप एक ही तरफ जाते हैं, मिड ऑन और मिड विकेट की तरफ. तो आई गेस बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं. अगर हम ये देखें, कोई भी यंगस्टर है उसको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जहाँ भी बॉल है उस तरफ खेले. I think he's a perfect example of what a modern cricketer is all about. All-rounder. He's a perfect example of that. Waqar, sorry. मैं एक सवाल कर सकता हूँ? जी जरूर. मेरा सवाल आप ही से है. जी. अभी आपने एक ट्वीट किया है. कौन सा? मुझे टैग किया है उन्होंने कि मैं एक्चुअली आज तक पवेलियन ढूंढ रहा था, तो मुझे एकदम एक ट्वीट दिखा जो मुझे टैग किया हुआ है भाई साहब ने, और नीचे वीडियो लगाई हुई है. उन्होंने लिखा है, वो वीडियो है, वो शोले मूवी नहीं है, उसका एक वो फेमस डायलॉग है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई. तो वो उन्होंने किया. तो मेरा सवाल इनसे ये है कि ये आपने मुझे क्यों किया है? मुझे आप बहुत खामोश हैं जब से हम आए हैं पोस्ट मैच के अंदर. आप कम बोल रहे हैं आप. वो तो मेरा मसला मेरा मसला कम बोलने का ये है कि फिर वो होता है ना कि मैं बोलूँगा तो बोलता है क्या जो भी मिसाल है. मैं बोलूँगा तो बोलेंगे कि बोलता है. Exactly, you're right. So I just we want to hear you always talk and smile and say the things that you want to say and share whatever is in your heart with all of us. Really? Yes. Okay, I'm sorry. आपका दिल है कुछ बोलने के लिए. तो बड़ी जख्मी जिगर वाली बात की. आपका दिल है? नहीं, आपका दिल है ऑफ कोर्स, और बहुत अच्छा दिल है. अस्तगफिरुल्लाह. अच्छा, वसीम, कमिंग बैक टू Arshdeep and Bhuvi, अगर उनके शुरू के आप ओवर्स देखें, there was some movement there for a while that they were getting, but obviously the dominance was there from the English openers. और अभी आपने ये बात की कि अगर ये persistent, अगर शायद एक ओवर और उनको दिया जाता Arshdeep को, it could have added some more pressure
Yeah, a lot of ifs and buts. I think credit to Butler and Hales. They were just too good. I suppose कोई भी दुनिया में बॉलिंग अटैक होता जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे प्रॉब्लम होती. बट या वो अनलकी थे, नए बॉल से विकेट नहीं मिली, 6 ओवरों में 63 भी हो गया, चेजिंग डिफेंडिंग 168 ऑड्स को रन्स. बट उसके बाद वो दोनों रुके नहीं, उन्होंने 15-16 ओवर में मैच भी खत्म कर दिया. सो या कन्विंसिंग इज अ माइल्ड वर्ड फॉर से कन्विंसिंग विन. एंड वकार फॉर द इंडियन स्पिन डिपार्टमेंट, हमने अभी वो स्पिनर्स की बात कर रहे थे, मिसबा वो कर रहे थे आज. इट लुक लाइक देयर स्पिनर्स जस्ट कुडंट गेट इट. आई मीन they have some of the best spinners, especially Ashwin, but it just everybody looked like off color. Yeah, I think they misread the situation, they misread the pitch, they misread the cricket, the game actually, because they never thought ke ye jo run 168, they thought that that's enough. They honestly thought that that's more than enough. We'll catch them, and I think that's where they were wrong. Today they definitely missed Bumrah, they definitely missed Jadeja, because उनकी bowling बहुत ही ordinary लगी. बड़ी अक्षर पटेल ने जो bowling की है, he just game बड़े आराम से, उनको ये नहीं कि उनको कोई effort करनी पड़ रही थी. उनकी शॉटें अगर आप उठा के सारी देखेंगे तो उन्होंने कोई ऐसी रिस्की शॉट नहीं खेले हैं. बिल्कुल ऐसे उन्होंने प्लेट में रख के ये देखा ना, वेल यू हैव नो पीछे कवर में या पॉइंट पे फील्डर नहीं है. सो दिस इज सम ऑफ द डिलीवरीज वर गुड. लाइक लुक एट दैट. आई मीन लकी है कि इस पे उसने अटैक नहीं किया. दीज आर ऑल शॉर्ट डिलीवरीज. बेसिकली बचने वाले बॉल हैं सारे ये. दीज आर नॉट द डिलीवरीज वेयर यू लुक टू पिक अप विकेट्स. And I think that's where was a good delivery. I mean, very few deliveries were bowled on a right spot where they would have asked the questions. And I think Jadeja would have made a big difference because he controls the game. We're talking about pace. Yeah. Long run, you think they have to kind of find a couple of bowlers who can consistently bowl that pace. They had this guy Umran Malik, I think his name is. He played against Ireland. एक आधे T20 में उसको मार भी पड़ी है. बट लाइक यू सेड अर्ली ऑन, इफ यू हैव पेस यू वर्क विद दैट बॉलर, यू कीप हिम इन द स्क्वाड ताकि वो आगे जाके आपको मैचेस जिता सके. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर इट और नॉट, क्योंकि जब अभी रिसेंटली एशिया कप में जब हम लोग सारे वी वर देयर एट द कमेंट्री बॉक्स, सारे उनके कमेंटेटर्स भी थे. एंड दे हैड लॉन्ग शोज एंड दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टीम का जो कॉम्बिनेशंस बना रहे थे. एंड just discussion में हम लोग भी थे कि we were talking about our side, and they were just more keen on bowlers who controls the game, just bowl good seam, which is good. I think you do need one or two bowlers like that. Like me and you, we were just insisting on that. Yaar, look into the pace. You're going to Australia. Australia is going to be a bounce. There are going to be variation. They're going to be playing on different centers. But nobody put that Malik guy, who got like 156, 158 तक ball करता है. Very fast. Yeah, he might be expensive at odd day, but ये है कि फर्क डालती है पेस. बिल्कुल डालती है. शोएब, मैं थोड़ी टेक्निकल चीज़ पे बात करना चाहता हूँ. सिंस वी आर डिस्कसिंग ये पेस, जो यंगस्टर्स आते हैं जी, एक्सक्यूज मी, मुझे ये लगता है कि उनको थोड़ा सा चांस ज़्यादा देना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्योंकि वो उनका, जैसे आपने कहा कि उनके मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं. तो क्या ये होता है कि जैसे आपने ये भी कहा था कि फर्स्ट टाइम में या कुछ बिगिनिंग ऑफ देयर करियर या मैचेस, उसमें उनका पेस आ रहा था एवरेज स्पीड 140 प्लस, फिर एकदम 135 पे आ गए. इसलिए क्योंकि उनके मसल्स यूज टू ही नहीं है, उनकी बॉडी यूज टू ही नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली जनरेट कर सकें 140 प्लस. इसीलिए मैं वापस उसी जाता हूँ, इन्फोसाइज करता हूँ उस चीज़ पे कि ये स्टेप बाय स्टेप वाला गेम है, ये स्टेप बाय स्टेप वाला गेम है. क्योंकि जब जैसी प्रेशर पड़ता है यंगस्टर पे, तो वो जाहिर बात है उसके नर्व्स जो हैं वो अंदर से उसे तंग करते हैं, तो वो पेस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है. देखिए यंगस्टर हमेशा, वसीम भाई, वो आपको क्रंच सिचुएशन में जाके, मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं वो ब्रेक हो जाते हैं. वो इसीलिए ब्रेक होते हैं क्योंकि वो उस हडल से कंसिस्टेंटली नहीं गुजरे होते. तो आपका जो थिंक टैंक है, उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इन पे इतना वर्कलोड डाला जाए जिस पे ये इम्प्रूव करें, ना कि ये टूट जाए. तो यही मुझे लगता है कि जो आपका यंगस्टर है, और मैंने अभी अंडर 19 ये PGL में था तो मैंने देखा वहाँ पे भी 140 वाले हैं,
लेकिन उनका क्या होता है, अगर उनको थ्रू द लाइन अच्छा शॉट मार दिया किसी ने तो नेक्स्ट बॉल वो बाउंसर करते हैं। ये नहीं सोचते कि मैंने मुंह की तरफ बाउंसर करना है, या जो मुंह वाला अच्छा खेलता है तो मैं उसे आउटसाइड ऑफ स्टंप करूंगा, अगर वो आउटसाइड ऑफ स्टंप अच्छा खेलता है तो मैं मुंह की तरफ करूंगा। ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस जब यंगस्टर आपका गेन करता है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो क्रंच सिचुएशन में आपको सक्सेस दिला सके। Totally agree with Shoaib. I think he makes a lot of sense कि जो आपके जितने भी यंगस्टर हैं उनको फर्स्ट क्लास में ग्रूम करना चाहिए। लेकिन क्योंकि शेबी आजकल डिफरेंट फॉर्मेट्स आ गए हैं, यू हैव T20, वनडे एंड टेस्ट मैच। आपको टेस्ट बॉलर तैयार करना है, यू गो एंड प्ले हिम द लॉन्गर वर्जन एंड देन यू आस्क हिम टू जस्ट कीप गोइंग, जस्ट गेट रगेड। जैसे हसन ने किया, हसन प्लेड 9 first class matches जब वो बाहर हुआ एंड देन ही केम बैक एंड ही वाज अ डिफरेंट बॉलर ऑल टुगेदर इन टेस्ट मैच क्रिकेट। बट T20 क्रिकेट में मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास यंगस्टर है जो कि 155 158 पे बॉल करता है, आप उसको टीम के साथ रखते, मेरे कहने का मकसद ये, आप उसको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में साथ रखते, आप ऑपोजिशन देख के उसको डालते मैच में एंड यू वुड हैव सीन द डिफरेंस। हमने भी ये नसीम शाह वगैरह इसी तरह बने हैं ना, आपके दूसरे शाहीन भी इसी तरह बना है। दे डिड नॉट प्ले मच ऑफ अ फर्स्ट क्लास क्रिकेट बट वी इनकरेज देम टू जस्ट कीप गोइंग, जस्ट गिव देम दैट द प्लेटफॉर्म, द बड़ी इन्वायरमेंट, जो द क्राउड इन्वायरमेंट एंड देन एंड मेक श्योर कि जी ये लोग वो चीज़ करते रहें कि जिसके लिए वो आए हैं, एंड दैट इज़ पेस। वहाँ पे ये होता है कि समटाइम व्हेन यू थ्रो देम बैक and certain coaches, certain people, when they want wickets in 4-day cricket, for 3-day cricket, they उनको थोड़ा सा different कर देते हैं। Don't forget ये जो शाहीन है, ये नसीम है, ये लोग टेस्ट क्रिकेट खेल के बने हैं, क्योंकि we were choiceless। कुछ हमारे bowlers ने रिटायरमेंट ली थी टेस्ट क्रिकेट से, so we had no other choice to play these guys, so they played test cricket and that's how they gained experience। All right, and with that we're going to take another break right here on the Pavilion. Don't go away, keep watching, see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. You're watching A Sports 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. The second semi-final came to an end and England winning that very, very convincingly and are through to the finals to meet Pakistan. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Waqar, Younis and Wasim Akram with me. और अब ज़रा बात करते हैं इंग्लैंड की बैटिंग की क्या एक्चुअली इंग्लैंड के ओपनर्स की बैटिंग की, जो बाकियों की तो बारी नहीं आई, बट हाउ गुड वाज द बॉस बटलर। Unbelievable, 80 of 49 with 9 fours and 3 sixes. And on the other hand, Alex Hales, that's his favorite ground, Adelaide. Yeah. Big Bash में उसको वहाँ का king कहा जाता है, kind of. His strike rate is 151, average of almost 40 in 10 innings he played there. Wasim, he was also the king of the kings at one time. Yeah, he was with Karachi Kings, yes. How was your experience working with him? I mean, what kind of a personality is he? Great guy, comes, plays his game and goes home. And team man, easy going, कोई नखरे नहीं है इसके. It's good to have him in the squad and helps. अगला सवाल भी उन्होंने सोचा हुआ, तो वो छोड़ के क्यों गया? बताया सबको, पता था. मैंने तो नहीं पूछा ये सवाल. तो ये पूछ रहे ना. आपका मकसद यही था ना, ये पूछ रहे. मैंने उनका मकसद, उन्होंने अगला यही सवाल पूछा. आपने पूछना तो आप पूछ सकते हैं और आप और फिर भी पूछ सकते हैं. चलो आगे चलो. बटलर की जरा बैटिंग देखते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. बटलर was just outstanding today. Josh Butler, the boss, as we said, and he was meticulous. Look at that. He's just a different player. He looks so easy. बल्ले का फॉलो थ्रू भी नहीं है, आराम से देखे ना, ये टाइमिंग भी करता है, फिर बड़ी शॉटें भी मारता है. He's just a different ball game player. I mean, look at this shot. It's an impossible shot to play. That's something special. Back foot पे extra cover के ऊपर से मार दिया. Yeah, that वो length ball में बड़ा मुश्किल है. भाई तो चिक्का खेल रहे हैं ये लोग. Yeah. सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, राइट फ्रॉम द टॉस जो बॉडी लैंग्वेज थी बटलर की, नो वरीज, एंड आई थिंक वो बैटिंग में भी नज़र आया. मैचअप्स ये कह रहे थे कि वो बड़ी सक्सेस है इनके बॉलर्स को, बट द वे ही स्टार्टेड, पहले ओवर में उसने अंडर प्रेशर कर दिया इंडिया को. जो 2 चौके वो भुवनेश्वर कुमार को, और वो कीपर ऊपर आ गया. पहले बॉल पे उसने फीट यूज़ किए, तो वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि बिल्कुल उनके प्लान्स को धर्म भरम कर दिया उन्होंने. Not only did he use it, he used the feet and left the ball. That's all he did. Just because of normally क्या करते हैं आप, उसको पता था कि अच्छी जगह से स्विंग करता है, इसके मैंने दिमाग में ये चीज़ डालनी है कि ये वो जो लेंथ है, टीजिंग लेंथ, वहाँ से इसको हटाना है
और बॉलर अंडर प्रेशर हो जाए। उसके बाद देख लें वो जिस बॉल पे नहीं उसने मूव किया उसमें भी उसको बॉलें मिली, आगे थोड़ी सी लेंथ पीछे हो गई भुवनेश्वर कुमार की। और जब आप मीडियम एज ए मीडियम पेसर आपकी लेंथ पीछे होती है ऐसी विकेट पे, तो देन इट्स इजी फॉर अ बैट्समैन टू जस्ट बेसिकली हिट थ्रू। रूम भी बहुत दिया उन्होंने, बहुत रूम दिया उसको बटलर को ना आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उन्होंने बहुत रूम दिया टू प्लेस दोज अर्ली ड्राइव्स, यू नो। और इतनी पेस ना हो और आगे आप स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा अगर चौथी स्टंप से करते तो आई थिंक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती थी, बट बिकॉज इट वाज जस्ट वे टू वाइड, सो ऑल ही वाज डूइंग, ही वाज जस्ट थ्रोइंग द बैट ऑन बॉल एंड द बॉल वाज ट्रैवलिंग, इज अ स्ट्रांग गाय। ओवरऑल जो चीज़ एक नज़र आई वो यही थी कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट इंडिया नेवर लुक्ड इन कंट्रोल, कॉन्फिडेंट नहीं लगी। इवन बॉलिंग का भी जब शुरू हुआ तो जैसे श्योरिटी आपको नहीं होती कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, बेसिकली यू आर डूइंग समथिंग बट यू आर नॉट श्योर कि यार ये करना है या ये करना है, तो उसका मुझे लगता है। बट ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड बॉलिंग, टॉस, कंडीशंस, बैटिंग, कैसे हमने जाना है, दे वर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट एवरीथिंग व्हाट दे वर डूइंग। Truly, that is correct about that. Alex Hales also, as Wasim was saying, he looked like king. There screen पे उनकी बैटिंग पे भी नजर डालते हैं. And Shoaib, take us through his batting. I mean, some of his shots were just unbelievable. अनबिलीवेबल शॉट्स। उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि मुझे बॉलिंग कहाँ हो रही है और मैं कहाँ टारगेट कर सकता हूँ। तो एज अ बैटर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या कंडीशंस हैं, बॉलर्स कहाँ पे मुझे टारगेट कर रहे हैं। और देखें उन्होंने स्पिनर्स आए तो उन्होंने शॉर्ट बाउंड्रीज जो हैं वो उनको इस्तेमाल किया, क्योंकि स्पिनर नॉर्मली आगे नहीं बॉल करते। बहुत अच्छा एक्स्ट्रा कवर पे शॉट खेला। दूसरा उन्होंने पेसर को पहले मजबूर किया कि मुझे फुलर बॉल करो ताकि मैं आपको डाउन द ग्राउंड खेलूं। फिर उन्होंने उस पे आगे कि अब मुझे थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो मैं इनको स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलूँगा। तो आई गेस एक आप मीटिंग में बात होती है, जैसे बटलर की मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। बूवी ने जब बॉल किया तो वो 2 कदम चले, कीपर ऊपर आया 1-2 बॉलों के लिए, फिर वो वापस चला गया। बटलर नहीं चाहते थे कि वो उनको स्टंप्स में बॉल करें, वो चाहते थे कि मुझे बाहर बॉल करे। कंडीशंस अच्छी थी तो वो और पेस भी इतना नहीं है बूवी का, तो उन्होंने कहा मैं इसको यूटिलाइज करूँगा। लेकिन एक और बहुत अच्छी चीज़ थी कि उनको ये प्लान सूट करता था बटलर को कि ये मुझे बाहर बॉलिंग करे, लेकिन उन्होंने किसी और बैटर को नहीं कहा, क्योंकि अगर 2 बैटर हैं वहाँ पे खेल रहे हैं तो शायद एक को बट जो लेंथ है वो तंग कर सकती है, दूसरे को ना करे। तो सिर्फ एक ही बंदा जो है बटलर वो बाहर आए डाउन द विकेट और फिर वापस अपनी क्रीज में चले गए। तो आई गेस मीटिंग में भी जब बात होती है तो वो हर बैटर को नहीं वो सेम मैसेज, या हो सकता है सेम गेम प्लान ना उसके लिए अच्छा हो। तो इसीलिए क्लियर बहुत मैसेज होना चाहिए कि यार जो आपको सूट करता है आप उसमें अपना प्लान बनाओ। क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू टुडेज गेम, रिलेटेड टू द बिग फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। 92 सारे लोग कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह करे 92 की रिपीट हो, बट इनके खिलाफ प्लान पूरा करना पड़ेगा बटलर और हेल्स के इसमें भी खिलाफ। बात करते हैं हम जब हम उस मैच के बाद जाएंगे वसीम एक दफा फिर, बट आई विल कम टू यू वसीम once again, and we were talking about IPL and how this is not really helping the BCCI cause. 4 लगातार सेमीफाइनल हारे हैं ये वर्ल्ड कप्स के इंडिया, ठीक है, 4 लगातार सेमीफाइनल्स हारे हैं और 9 साल में ICC का एक भी टाइटल इन्होंने नहीं अभी तक जीता। 9 consecutive years they've gone without an ICC title. Again, that they won 50 over World Cup in 2011. This is 9 years. 9 years से ज़्यादा हो गए ना, so वो गए। So I'm just saying, since IPL have started, they've not won T20. Yeah, and they haven't won any T20. So this goes back to saying that is there something BCCI needs to tweak and maybe allow their players to go and play other leagues, maybe kind of इसको IPL को छोटा करें, कुछ उसके ऊपर उनका होना चाहिए, एक्शन करेंगे, या is IPL too big, as Waqar was saying, too big a business कि उसके साथ nobody wants to challenge? देखिए इंग्लैंड ने जो फ्रेंचाइज क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड बड़ी यूज़ की है इंग्लैंड ने। उन्होंने अपने हर प्लेयर को इजाज़त दी है कि दुनिया में जाके तुम लीगें खेलो, मेन प्लेयर्स को भी दी है। पाकिस्तान में भी उनके मेन प्लेयर्स आए, उससे देखें PSL इन पाकिस्तान, IPL इन इंडिया, बिग बैश इन ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग इन बांग्लादेश एंड लॉट्स मोर, सब में गए हैं उनके प्लेयर। सो फ़र्क तो नज़र आ रहा है कि अगर आप बाकी लीगें जैसे शोएब ने बताया खेलोगे और सिर्फ एक लीग खेलोगे साल में, उससे फ़र्क तो पड़ता है। The way forward, let me take this to you, Waqar. What is the way forward for India? I guess they'll go back now first.
and there is no direct flight from Adelaide, so they might have to go to Melbourne or Sydney to fly out for India. And then, of course, the issues they have to really address it. Yeah. We have spoken so much about it that they probably know what needs to be fixed and get on with the job. I mean, World Cup is over for them. IPL aane wala hai. There's a lot of cricket coming up, so there's plenty to look forward. And it's time for us to get paid and for us to make some money because it's time for a break. Keep watching the Pavilion. All right, welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आप देख रहे हैं Sports and the ARY's app. We were talking about the second semi-final, which England have won convincingly and moved on to the finals, where they will be meeting Pakistan. And this is going to be a fantastic game. A little disappointment for the Indian fans. You win some and you lose some, but that's how the game is. With that, we're now going to talk with our experts, Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar, Younis and Wasim Akram. So now we know that it is an England-Pakistan final. How does Pakistan gear up for this? It's a big day. That's what you play for as a sportsman. First of all, you want your dream is to represent your country, and then obviously to be in the World Cup finals. That's the huge deal. So congratulations to Team Pakistan and England. They have done the hard yards on the D-Day. Very simple सी theory है. I think just Pakistan team should make it simple. Go out and have lots of fun. It'll be at MCG. It'll be kind of. I can also tell you one secret. The whole Australia will be supporting Pakistan. Because of England. That's what exactly happened in 92 World Cup. अगर 89,000 बैठे थे तो उसमें 50,000 ऑस्ट्रेलियन थे because प्लान करते ना टिकटें पहले ले ली थी उन्होंने. हमारी तरह लास्ट मिनट पे फोन नहीं आता 36 टिकटा दे देना और वीवीआईपी वीआईपी नहीं. अच्छा टिकटें भी नहीं पासेस दे देना फ्री पासेस. जो बेस्ट चीज होती है हमारे कल्चर में जो सही चुभती है यार 10 टिकटें वीवीआईपी पैसे ले लेना. हाँ जाके खरीद ले भाई. खरीद ले मुझसे क्यों मांग रहे? अच्छा, I got off track here. No, but it's a very valid point because sometimes, and though I have nothing to do with most of this, just because I'm on TV, हर कोई मुझे मैसेज कर रहा होता है यार 4 passes तो दिलवा दो यार इस मैच के, 6 वो तो टिकट्स तो दिलवा दो उस मैच के. So Pakistan have done the hard yards. They should enjoy that day, enjoy soak in the atmosphere. Yeah. Be relaxed. If you ask me how I felt 30 odd years ago on that particular day, I've given so many interviews. On that particular day, I felt very light. In the morning when I was walking to the ground from the hotel, जो cross Hilton था तब across the ground, beautiful little garden से आप गुजरते हो garden से, and then I felt very light. Even on the field itself, I felt I could fly because there was no pressure. I had a good night's sleep. I didn't think about it कि World Cup final है. So that was that's how I felt on that particular day. I hope हमारे शाहीन भी उस दिन relax और flying feel करेंगे they can fly. Definitely. Misbah, after watching the English openers today, what should the Pakistani think tank be doing right now? What conversations would they be having with the captain कि ये strategy deploy करनी होगी? And of course, our battery of fast bowlers is very different to what we saw today. I think सबसे पहले तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि they should feel confident. आज के मैच को बिल्कुल इक्वेशन से निकाल दें. डिफरेंट बॉलिंग अटैक, डिफरेंट कंडीशंस थी. पाकिस्तान इज़ अ टोटली डिफरेंट बॉलिंग अटैक. सो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि वो क्या अच्छा करते हुए आए और अपनी गेम के बारे में ज़्यादा सोचना है, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में ज़्यादा सोचना है. जो बैटिंग जिस तरीके से हम खेलते हुए आ रहे हैं, हमें वो देखना है कि हमने वहाँ अपने प्रोसेस को, द वे ऑफ प्लेइंग जो है, उस पे हमने फोकस करना है. आज की परफॉर्मेंस को अगर हम जहन में रखेंगे या ये देखेंगे तो आई थिंक कि वो अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड करने वाली चीज़ है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान सिंपली ये सोचे कि हमने क्या करना है, कौन सी चीज़ें बेहतर करनी है. इंग्लैंड के अगेंस्ट जो सबसे बड़ा प्लस होगा, जो एक प्रेशर इंडिया के अगेंस्ट होना था, वो नहीं होगा. पाकिस्तान कैन एंजॉय दिस गेम मोर. एक्सप्रेस करें अपने आप को जाके अच्छे तरीके से, अपनी जो भी प्लान्स हैं, जो भी आपके जो आप नॉर्मली बैटिंग बॉलिंग करते हैं उस पे फोकस करें. ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड मैच बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप
और इंग्लैंड की ऑब्वियसली बैटिंग लाइनअप, और ये ज़हन में ज़रूर रखें कि इंग्लैंड की जो नीचे बैटिंग है वो भी अंडर प्रेशर जब आएगी तो वो दैट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम दैन। आज उनके दोनों ओपनर्स जो फॉर्म में हैं और टॉप क्लास प्लेयर हैं, उन्होंने रन्स किए। एंड कंडीशंस जो अभी तक हमने देखी हैं, मेलबर्न की कंडीशंस, इवन आयरलैंड के अगेंस्ट भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया है इंग्लैंड ने, तो ये भी ध्यान में रखें। और दुआ करो वुड फिट ना हो जाए। हाँ, वुड फिट ना हो, बिल्कुल। बाबर और रिजवान came back to their form. Very good to see them both in that half century. That momentum and that confidence comes in very handy for Pakistan into the final, Waqar. 100%. I mean, Melbourne conditions might be a little bit different, a little bit more bounce in the pitch, क्योंकि overall जो देखा है मेलबर्न की पिच और पर्थ की पिच में ज़्यादा बाउंस नज़र आया है। सो जो हमारी बॉलिंग होगी दैट आई थिंक विल बी लॉट मोर इफेक्टिव, क्योंकि तेज़ हैं, बाउंस मिलता है उनको। आई थिंक प्रोसेस स्क्वायर बाउंड्रीज भी ऑफ कोर्स बड़ी हैं, तो अपना प्रोसेस है जो सिंपल प्रोसेस आई थिंक रखना चाहिए। कोई नई चीज़ नहीं करनी चाहिए। फॉर्म अच्छी है, अब ओपनर्स की नहीं थी, वो भी फॉर्म वापस आ गई है, मिडल ऑर्डर स्कोर कर रहा है। सो आई डोंट थिंक पाकिस्तान शुड वरी दैट मच। तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टेडियम इतना भरा होगा और इतनी नीली शर्टें नज़र आ रही होंगी। हाँ, बामी आमी ज़रूर होगी, लेकिन ये याद रहे कि सारे ऑस्ट्रेलिया से जो पाकिस्तानी हैं वो भी सारे पहुँचेंगे, बिकॉज एवरीबडी कैन फील इट, दे कैन जस्ट सेंस इट के Pakistan can win this World Cup. Yeah, Shoaib, let me bring the same question जो मैंने मिसबा से पूछा था, that exactly for the power play क्या conversation हो रही होगी हमारे think tank की when they go out bowling to this English opening? I guess just attack them. शाहीन का जो उसकी strengths हैं, pitch up, swing the ball, विकेट लेनी पड़ेगी इनकी। बटलर और हेल्स की विकेट लेनी पड़ेगी। एज मिसबा भाई सेड के जो उनके मिडल ऑर्डर है वो अंडर प्रेशर है, दे हैवंट बीन डूइंग वेल, तो उसके लिए उनका विकेट्स लेने अर्ली ऑन बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इंग्लैंड की जो टीम है अपनी तरह ढालना पड़ेगा उनको कि हम ऐसा मैच आपके साथ खेलेंगे, और वो तभी हो सकता है जब आप अर्ली ऑन उनके विकेट्स लेंगे। तो मुझे ये लगता है कि आपको इंग्लैंड को अपने अंदर ढालना पड़ेगा। हाँ, हमारे साथ 150 160 वाला मैच खेलो, हम आप लोगों के साथ 180 190 वाला नहीं खेलेंगे। और पाकिस्तान के पास ये रिसोर्सेज हैं, क्योंकि बॉलिंग अटैक बहुत अच्छी फॉर्म में है और बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंट बेसिस पे। और दूसरा एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर उनके नहीं आउट होते अर्ली ऑन एंड समहाउ दे गेट टू 180 प्लस, डोंट फॉरगेट आवर ओपनर्स कि हमारी मिडल ऑर्डर अब अच्छी फॉर्म में है और खेलें उन टाइप का ही गेम खेलें। अगर वो हमारे हाथ से निकलते हैं, 180 वाला मैच खेलते हैं, शेबी वो पिच डिफरेंट होगी देन एडिलेड एंड सिडनी। So I was going to ask you. लेकिन tell us more about this ground and this pitch. वो अप्रोच नहीं चेंज करेंगे, वो मॉडर्न डे की क्रिकेट खेलेंगे। और एक और चीज़ है, हमें पाकिस्तान टीम को ये याद रखना चाहिए, जैसे उनकी मिडल ऑर्डर है, हैरी ब्रुक हैं, उन्होंने अभी तक अच्छा नहीं परफॉर्म किया, बट लास्ट सीरीज में ही हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल अगेंस्ट us and he faced all these bowlers। तो वो एक साइकोलॉजिकली एक प्रेशर ज़रूर होता है, तो वो समवेयर डाउन द लाइन उनको कॉन्फिडेंस ज़रूर होगा जो बैटर्स यहाँ पे इंग्लैंड की टीम के खेल के गए हैं यहाँ। दूसरा उनको ये भी एडवांटेज है कि जो हमारे मेन बॉलर हैं उनके साथ रहे हैं, लाहौर कलंदर्स में शाहीन को, हारिस को मोस्टली नेट्स में फेस करना, तो ये भी एक एडवांटेज था उनको जब पाकिस्तान में। PSL का भी एक एडवांटेज था यहाँ पे परफॉर्मेंस का। आई थिंक ये कंडीशन ज़रूर एक चैलेंज है उनके लिए भी, क्योंकि ही हैज़न्ट प्लेड दैट मच क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो एक डिफरेंट किस्म का जो चैलेंज होगा इंग्लैंड के लिए, वो obviously that is. So I was going to come to the conditions and to the MCG. Tell us more about this venue. The pitch, how the pitch behaves here. The pitch definitely has changed. Outfield. When we played there, it was proper cricket ground. Now it's a multi-purpose sports stadium, because यहाँ पे आपका इनका Aussie rule footy भी होता है, यहाँ पे regular होता है. Every game is 100,000 people watching that game. So yeah, it's a drop-in pitch. We've seen in this World Cup के पर्थ में और मेलबर्न में बाउंस सबसे ज़्यादा। पर्थ नंबर 1 कर लो, मेलबर्न नंबर 2 कर लो। तो हालांकि ड्रॉप-इन पिच है, बट जैसे बाउंस थोड़ा ज़्यादा है। सो व्हाट आई डोंट वांट टू सी कि वो आके हम शुरू में बिल्कुल ही ठक्का लगा लें 6 ओवरों में, फिर वही बात होती है कि फिर कम बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगेंस्ट द गुड साइड, स्पेशली द फाइनल्स। या एग्जैक्टली। एक चीज़ जो आज हम
बात करना भूल गए बिटवीन दी फॉर द सेमीफाइनल इंग्लैंड इंडिया। इंडिया की आज फील्डिंग भी बड़ी ऑर्डिनरी थी। वो शुरू में आई थिंक शेवर बाद हिम्मत, नॉट हिम्मत बट यू नो बॉडी लैंग्वेज गिर चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली दे मेड सम फॉर इंडिया। दे कुड सेंस जैसे स्टार्ट हुआ कि गेम हमारे हाथ से निकल गई है, क्योंकि अर्ली विकेट्स के बाद जब आपके पास कोई ऐसा बॉलर मिडल में नहीं है जो आके इम्पैक्ट डाल सके, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ऑलराइट, ओके दोस्तों, इस मौके पे हम लेंगे एक और वक्फा, बट याद रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है आस्क द पेविलियन, आस्क द पेविलियन, ये हैशटैग आपके सामने है। सो नाउ यू कैन सेंड अस योर क्वेश्चंस फॉर आस्क द पेविलियन टू आवर ट्विटर, थ्रू ट्विटर, एंड वी गोइंग टू स्टार्ट आस्किंग आवर पैनलिस्ट्स हियर एंड गेट यू आंसर्स फॉर योर क्वेश्चंस। कीप वाचिंग द पेविलियन ऑन A Sports and 10th Sports. We'll see you after the break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports, 10th Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. And the news, of course, today is that the second semi-final concluded with England walking into the finals to clash with Pakistan on the 13th of November. और मेरे साथ इस वक्त Pavilion में मौजूद शुएब मलिक, मिसबाहुल हक, वकार, यूनिस, वसीम, अकरम। Ask the Pavilion, हैशटैग आस्क द पेविलियन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, हैशटैग आस्क द पेविलियन। इस पे आपके सवालों का ट्विटर के थ्रू सिलसिला जो है शुरू करते हैं। सुभी स्पीक्स, मुस्तफ़ा सुभी, आपका सवाल है आस्क द पेविलियन में। वसीम अकरम, कैन यू प्लीज रिक्वेस्ट इमरान खान टू सेंड हिज कॉर्नर टाइगर टी शर्ट टू बाबर फॉर द टॉस ऑन संडे? क्या नाम बताया था? सुभी स्पीक्स, मुस्तफ़ा सुभी। So we very random request, weird request, but yeah, not a bad idea. Let me match the skipper after the show. Of course. सैयद उमैर, आप का सवाल है वकार आपसे। सैयद उमैर कहते हैं टू वकार, where should we be bowling to the openers? They can pull, drive and slog in the finals. English openers को। I didn't get the question right. वो कह रहे हैं कि सैयद उमैर, उन्होंने ट्वीट जरा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, मगर मैं सब आपको कर देता हूँ कि पाकिस्तान को कहाँ पे बॉलिंग करनी चाहिए, किस लाइन और लेंथ पे हमारे अटैक बॉलर्स को करना चाहिए टू दी इंग्लिश ओपनर्स, क्योंकि वो पुल भी कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं, स्लॉग भी कर सकते हैं, तो किस तरह की बॉलिंग होनी चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि सरफेस किस तरह का है, पिच पे डिपेंड करता है। अगर पिच ग्रीन है तो हमने देखा है कि बॉल फ्लाई करता है, तो थोड़ा सा बैक और लेंथ रखना पड़ेगा। अर्ली ऑन मेरा ख्याल शहीन को वही ट्राई करना पड़ेगा कि अगर उसका स्विंग होता है, लेकिन विकेट्स लेना पड़ेंगी आपको, अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करनी है उनको। लेट देम जस्ट सॉर्ट ऑफ डोंट गिव देम द रूम टू फ्री देयर आर्म्स। आई थिंक दैट शुड बी गोना बी द की। और मेलबर्न में कैचिंग इज़ गोना बी वेरी वेरी क्रूशल, बिकॉज अगर पिच उसी तरह की हुई जो हमने देखी है, जहाँ पे बाउंस ज़्यादा होगा तो प्रोबेबली गेंद पीछे ज़्यादा जाएगा, थर्ड मैन, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, इस तरफ। तो कैचिंग एंड फील्डिंग इज गोना बी द की। विल बी। ताहा वलीद का सवाल है, आई वांटेड टू आस्क द फास्ट बॉलर्स, हाउ कैन यू करेक्ट lateral flexion? What is lateral flexion? I'm not really aware of that. So lateral movement होती है। Flexion, FLEXION लिखा हुआ है इन्होंने। So how can you correct lateral flexion? I have no idea what that means. Fast bowlers, Waqar, Wasim. Okay, we'll try to find out what that really means and then maybe address it later. Message him back, ask him the वो देख रहे होंगे तावरीद, आप जरा एक और दफ़ा ट्वीट करें इसी हैशटैग पे and tell us what do you really mean, what exactly do you mean? Right जनाब, प्लीज आस्क फ्रॉम द लेजेंड्स दैट वसीम भाई टोल्ड। फैसल मिर्ज़ा का सवाल है। फैसल मिर्ज़ा वसीम कह रहे हैं कि आपने द अदर डे यू टोल्ड दैट यू बॉट अ कार फ्रॉम योर फर्स्ट क्रिकेट पेमेंट, राइट? What did the other legends in the studio do with their first check? And what did you do from your Bhangra Pao first rap songs income? Good question. Misbah. मैंने भी गाड़ी ली थी। गाड़ी ली थी, right? शुएब? मेरे माँ बाप को गए थे पैसे, और बहुत टाइम तक मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि जो भी पेमेंट घर जाती थी वो ही सारा देखते थे। Alright, fair enough. वकार? ये मेरी फर्स्ट सैलरी जो थी वो 2000 रुपया थी। आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग इंटरनेशनल, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई फर्स्ट प्लेड 2000। आई गेव इट टू माय मदर दैट 2000। और मेरा जो पहला चेक जो था, जो आई स्टिल रिमेंबर प्लेइंग शारजा कप एंड नेहरू कप, वही जो फेमस नेहरू कप जिसमें वसीम भाई को इमरान भाई ने कहा कि रोक के खेली, तो इन्होंने रोक के ही खेले। सेम टूर्नामेंट हम दोनों टूर्नामेंट हम इकट्ठे खेल के आए थे। एंड व्हेन आई गॉट बैक द चेक आई गॉट वाज 47,000 रुपीस। 89 में, yeah, 47,000 rupees,
and that also check went to my mother. All right, very, very nice. For me, when I got the first payment, which came through royalties and a You made money from contract- your music? Oh yeah, a lot of it. You had a lot of money before even you just became star. No, that's not true. That is absolutely not true, Waqar. Actually, that is incorrect information that you have. Mummy, daddy, yeah. But when I got the first paycheck, the first thing I did was invest in studio equipment because we needed studios back then. We didn't have very good audio studios, and I have enough money left that I invested the rest. तो गाड़ी थी आपके पास ना, तो वकार ने भी By the ही way, मैंने कहा this is a very interesting thing. If you must insist on me sharing this story, let me share this story. जब एक प्रोग्राम आता था म्यूजिक चैनल चार्ट्स, पाकिस्तान की मौसीकी की तारीख का बड़ा हिट प्रोग्राम होता था, उसके अंदर मैं होस्टिंग करता था और मैं कराची में किसी के घर में रहता था, उनके ड्राइंग रूम में मैट्रेस पे सोता था। मेरे मामू थे उनके घर में, वो बेचारे 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास गेस्ट रूम नहीं है, ये ड्राइंग रूम है, इसी में तुमने सोना है। सो आई यूज्ड टू स्लीप ऑन अ मैट्रेस देयर एंड आई यूज्ड टू टेक ए पब्लिक transport bus, regular public bus from their house in Gulshan all the way to Sadr, जहाँ पर ये ऑफिस होता था कंबाइन का, जहाँ पर ये शो हुआ करता था। And I used to travel on the bus. Now tell us के घर पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती थी? I'm telling you what I was doing. I was using public transport. Go ahead. सैफुल्लाह खान साहब, उन्होंने बिल्कुल एक फिल्मी तरह का क्वेश्चन पूछा है। तारीख अपने आप को दोहराएगी या इंग्लैंड 92 का बदला लेगा? इतने बदले ही चुने के अलावा, it's a game. Yeah. When people say it's a jung, it's not. It's a game of cricket. Let's our boys go out there and have great fun. We should support them either way. Try that for once. Okay. Okay. So the Umar Javed ने लिखा है, Sir Wasim, Waqar, Misbah and Smarty Shoaib bhai, 100 years of experience all together. You guys really make the World Cup memorable for us. No question, just a proud gesture for all Pak Nation. Love you all. Thank you. I have a very important question. Yeah. मुसाब बरकी ने कम से कम भी नहीं ये क्वेश्चन लिखते हुए कोई 2 घंटे सोचा होगा. My question is for Wasim. क्या था? हाँ, my question is for Waqar Younis. Why cricket coaches wear shorts whereas players wear pants? Yeah, answer that. Good luck. हो सकता है कि कोचेस को गर्मी ज़्यादा लगती हो. आप बताएं. कोचेस को स्लाइडें नहीं मारनी पड़ती, डाइवें नहीं मारनी पड़ती. प्लेयर अगर शॉट्स में स्लाइड मारें फील्डिंग करते हुए तो वो फिर जो है ना वो डॉक्टर के पास जाएंगे. चल जाएगा सारा कुछ. गर्मी अगर हो भी तो प्लेयर्स को जो है वो ट्राउजर्स पहनने पड़ते. Okay. अब्दुल्ला शामी का सवाल है मिसबाह उल हक आपसे. अब्दुल्ला शामी कहते हैं, मिसबाह भाई अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल जीत जाता है तो क्या हम आपको शोएब मलिक भाई के साथ स्टेज पर देखेंगे डांस करते हुए? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. उसे वो कह देना अड्डा तमाशबीन ठहर जाना. पहले शेव गिरा के आना मैं. इनका पता नहीं, मैं ज़रूर नज़र आऊँगा. Akhtar Nawaz, what's a safe score for Pakistan batting first and what's a safe target batting second? You can take that, Shoaib. Akhtar Nawaz. I guess 160, 170 plus if Pakistan bats first. और अगर चेजिंग में है तो आई गेस यही 150, 160 इसके आगे पीछे ही जो है ना मैच होना चाहिए. मलिक पिच पे भी डिपेंड करेगा. जैसे इंडिया पाकिस्तान का पहला पिच था वो डिफरेंट पिच था. ऑब्वियसली अब फाइनल में पता नहीं किस किस्म का पिच होता है. अच्छा बैटिंग पिच होता है. फ्रॉम उनका ट्विटर हैंडल नाम है डैडी शार्क. Okay. Random question but good one. Guys, could you wear the 92 kits on Sunday? We don't have them yet. हमने पिछले साल पहनी थी. In the semi-finals we wore the 92 kits. Yeah. ये वाली है, ये पहनेंगे इंशाल्लाह. हाँ, नई वाली पहनेंगे. We support our Shaheens the way they are. AC कट करा देना. AC का नहीं भाई, ये नहीं हो सकता. तुम नीचे बनियान पहन के आना, 2 बनियानों की लेयर पहन के आना. लेकिन ये तो आप लोगों ने मुझे अथॉरिटी दी हुई पहनना है. ये भी I will decide ना. आज हमने आपसे वो कर दिया. Misbah का है. With that, we're going to take a break right here on the Pavilion. Keep watching. We'll see you on the other side of the break. Welcome back to the Pavilion. आपसे कुछ देर पहले आज द Pavilion के सवालात के जवाब दे रहे थे. अब यूँ है कि सूरत हाल हम सब के सामने है. It is clear that it is an England-Pakistan final. ये आइडेंट आपको दिखा देते हैं. सूरत हाल यूँ है कि हम अब आपकी खिदमत में ये इतवार को फाइनल है.
13 तारीख को 13 नवंबर को हम आपकी खिदमत में होंगे मेलबर्न से, MCG से, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड. दिस इज़ हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ फ्रॉम 1992 to 2022 and it is going to be an epic game. ये पाकिस्तान टाइम 1 बजे बराह रास्त मैच आपकी स्क्रीन पर आएगा ए स्पोर्ट्स पे और 10 स्पोर्ट्स पर. एंड हमारे पेविलियन के अंदर कुछ पोजीशन इस तरह से कि कल हमारा ऑफ डे होगा. वी ऑल नीड अ ब्रीदर, सो इट्स गोइंग टू बी एन ऑफ डे फॉर अस टुमारो. हम अब आपकी खिदमत में सैटरडे यानी कि हफ्ते की शाम 7 बजे बराह रास्त आएंगे, वन नाइट बिफोर द फाइनल, टू टॉक अबाउट द बिग गेम and the various aspects and to look back at the way the World Cup has shaped up for different teams. और फिर ऑफ कोर्स हम लोग ऑन संडे सुबह 11 बजे आपकी खिदमत में बराह रास्त आएंगे. सो 11 से लेके 1 बजे तक प्री मैच एनालिसिस इन द पेविलियन विल बी विद यू ऑन योर स्क्रीन्स एंड देन the big game itself, the final, which we're all looking forward to. And with that, today's session has come to an end. I'd like to thank our experts. Thank you, Shoaib. Thank you, Waqar. Thank you, Wasim. And thank you, Misbah. I will get some rest tomorrow. We need to prepare ourselves for the big day on Sunday. And I'm Waqar, I'm taking you to the spa, right? You want to go same spa that me and Misbah went to? Which spa was that? That spa that we went to. Which spa was it? That spa that we went to. All right, with that, folks, we'll sign off here tonight. Thank you for watching. Thank you for joining us. Congratulations to England. Well played, well done, and we will see you in the finals. Apna khayal rakhiyega. Good night.